Today I will start. So our today's topic is while loop. Do while loop. Do while loop. So this is our today's topic. Do while loop. So it is same like for loop. जैसे for loop होता था, same it is also. The purpose is same, just the syntax is changing. Only the syntax is changing. Earlier, in case of for loop, the syntax is what? For I equal to 1 to 10. Step value is 2. Next of I. Next of I and some here statements. Any statements. Statements. So any number of statements. Here between for or next any number of statements will be there. Here I is what? The name of the variable. Variable name. Variable name. Here one is what? Initial value. Initial value. 2 is what? Keyword. 10 is what? Final value. Final value. Step, and here is what? Step value. Step value. Earlier, in case of for loop, the syntax is this one. For is a reserved word. This one is what? The name of the variable. Here, initial value. Here 2 is a keyword, reserved word. Final is also next one is what? Final value. Final value. Then step is what? Keyword, reserved name. And this one is what? Step value. Step value. So this is the syntax of the previous for loop. For loop का ये syntax था. Yes or no, everyone? Yes, tell me, everyone. Yes, sir. Yes, sir. So this is the syntax of for loop. And what is the purpose of this for loop? To execute the same task multiple times. Again and again. Yes, execute the same task again and again based on the initial value and final value. Initial and final value determines what? Number of times how many initial and final. Initial and final value determines how many times the loop will be executed. Initial and final value determines how many times the loop will be executed. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And in this one, 3 important point is there. What is that important point? Initial value. First one is initialization. So first one is initialization. Second one is condition. And third one is increment or decrement. So in any loop, in this for loop, so these are the 3 important points. See here, first one is initialization. Initialization का मतलब ये हुआ, ये for I, suppose see here one example. For I equal to 1 to 100, step value is 2. Next of I, and here I am printing one statement. Print statement is there. Print welcome to CMIS.
one message. So only one statement. Now see here, initialization means what? Here I equal to 1. I is what? One variable. So variable should be initialized. So here initial value of I, this one is what? Initialization. Condition means what? Final value. Here in this case condition means first time I value is 1, so here the condition will be like that, I less than equal to 100. This is what? ये कंडीशन है, ठीक है ना, ये कंडीशन है, ठीक है। ये फाइनल वैल्यू 100 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि आई वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 रहेगा, सेकंड टाइम 2 हो जाएगा, थर्ड टाइम 3 हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम 4 होगा। सॉरी, फर्स्ट टाइम आई वैल्यू इज 1, सेकंड टाइम आई वैल्यू इज 3, वाई स्टेप वैल्यू इज 3। सो दिस 100 ये जो यहां पर है ये क्या है? कंडीशन है। I इज लेस देन इक्वल टू 100, सो दिस वन इज व्हाट? कंडीशन। सो सेकंड इन द लूप द मेन पॉइंट इज condition, and third one is increment or decrement. Here step value is what? Positive, means increment. If the step value, sometimes the step value will be negative like this. See here, I value will be 100, step value is 1, step value is 1. See here, step value is 1. So in this case here see decrement, the value, step value is decrement. So third point is either increment or decrement. For loop में यही 3 हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, ठीक है ना। फर्स्ट वन इज इनिशियलाइजेशन, सेकंड वन इज कंडीशन, थर्ड वन इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कंडीशन जो है, अब ये हमारा इस तरह से जब रहेगा तो कंडीशन ये चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा, आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये हुआ, ऐसे जो लिखा हुआ है ये कंडीशन है, ठीक है ना। कंडीशनल ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दीज आर व्हाट? कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स। यहां तक सारे लोगों को क्लियर है ना कि नहीं? एनीवन हैव एनी डाउट? No, sir. यस, No doubt, sir. यस। सो इन दिस फॉर लूप, ये जो फॉर लूप था, ये फॉर लूप में यही 3 पैरामीटर्स पे ये फॉर लूप बना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आवर लूप इज डू वाइल लूप. Do while loop, purpose of do while loop is same like the while loop. Purpose of for loop, do while loop is same as like for loop. ये for loop जो है, जो काम for loop करता है वही काम do while loop भी करेगा. Just the way of writing the here statements. ये statement ऐसे लिखा जाता था, ठीक है ना। वही statements अब do while में हम लिखेंगे, यही हम ये जो लिखे इससे क्या होगा? 100 टाइम्स वेलकम टू CMS हमारे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अब इसी प्रोग्राम को हम लोग डिफरेंट सिंटैक्स के हेल्प से करेंगे। डिफरेंट सिंटैक्स, एक ही क्वेश्चन को मैथ में 10 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट क्वेश्चन को, सेम प्रॉब्लम को हम लोग फॉर लूप नहीं यूज करके डू वाइल लूप के हेल्प से अब करेंगे, ठीक है ना। सो डू वाइल का क्या सिंटैक्स है? सी हियर एवरीवन। So syntax of do while loop. So first one is what? Syntax is do. Do ये हमारा क्या है? रिजर्व वर्ड है, आपको लिखना ही है, ठीक है ना। ये do लिखना है, रिजर्व वर्ड है। नेक्स्ट वन इज while. While is also a रिजर्व वर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो नेम है do, आप किसी वेरिएबल के लिए इस नाम को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी वेरिएबल के लिए आप डू का यूज नहीं कर सकते। रिजर्व का मीनिंग अभी आप यही समझिए, ठीक है ना। while is also a reserve word, so we cannot use while as a what? Variable name. These are what? These are fixed. So do, while, and next one is condition. Next one is condition. So condition यहाँ पे क्या हो सकता है? Here one condition will be there, any condition. अब condition क्या होगा अभी हम बताएंगे, ठीक है ना। So this one is condition, and here at the end loop, at the end boundary, ये हो गया कि end हो गया। Between do and loop, whatever the statements you want to write, you can write. जो भी statement लिखना चाहते हैं तो इसी के अंदर लिखेंगे statements. Right now see here, अब हमारे पास इसके अंदर भी ये 3 पैरामीटर्स होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी लूप होगा
तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। सो अब इसके अंदर वो कैसे होगा, अब हम इसको समझिए विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ठीक है ना। नाउ सी हियर, डू व्हाइल कंडीशन, दिस वन इज व्हाट, फिक्स्ड सिंटैक्स, ये आपको लिखना ही है। यहां पर अब अगला कंडीशन हम लिखेंगे। सो कंडीशन लिखेंगे तो मैं एक वेरिएबल यहां पे लेता हूं। फर्स्ट ये क्या होना चाहिए, इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। तो इसमें डू व्हाइल केस में इनिशियलाइजेशन जो होता है, फॉर लूप में आपको याद होगा तो इनिशियलाइजेशन जैसे हम लोग फॉर लिखते थे ना, सी हियर, जैसे हम लोग फॉर लिखे कोई भी वेरिएबल यहीं पे लेते हैं और हम वैल्यू लेते हैं, तो यही इनिशियलाइजेशन होता है। जैसे ही फॉर लूप फॉर स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइजेशन यहीं पे रहता है। लेकिन डू व्हाइल के केस में ये जो डू व्हाइल सिंटैक्स लिखे हैं, इसके ऊपर में ही हमको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है। सो सपोज आई एम टेकिंग वन वेरिएबल आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1, मैंने एक वेरिएबल लिया आई इक्वल टू 1, राइट। सो इनिशियलाइजेशन हो गया। सी हियर दिस वन, द फर्स्ट वन, इनिशियलाइजेशन। डू व्हाइल के पहले हम एक वेरिएबल लिए और उसमें वैल्यू, इनिशियल वैल्यू डाल दिए। इनिशियलाइजेशन मींस व्हाट, इनिशियल वैल्यू डाल दिए आई का। अब हमारे पास सी हियर कंडीशन, अब कंडीशन में यहाँ पे राइट कर रहा हूं, लिख रहा हूं। सो कंडीशन में क्या लिख रहा हूं, व्हाइल आई वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू लेस देन 5, व्हाइल आई वैल्यू इज लेस देन 5, जब तक कि आई का वैल्यू 5 होगा तो मैं क्या चाहता हूं, प्रिंट करना चाहता हूं। प्रिंट करना चाहता हूं किसको, वेलकम टू CMIS, वेलकम टू CMIS। अब स्टेटमेंट्स होता है, स्टेटमेंट्स हम जितना स्टेटमेंट लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। और फाइनली एंड का मत, ये जो लूप है एट द एंड लिखते हैं, लूप, ठीक है ना। अब देखिए कंडीशन हो गया हमारा। कंडीशन तो इनिशियलाइजेशन कहां पर हुआ, इनिशियलाइजेशन यहां पर हुआ। कंडीशन कहां हुआ, कंडीशन ये हुआ हमारा आई लेस देन 5। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहां हुआ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमारा अभी इसमें नहीं है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहां पे करेंगे, ये डू और लूप के अंदर, इसी बीच में। अर्लियर सी या फॉर लूप के केस में हम लोग क्या करते थे, इंक्रीमेंट फॉर, इसी को अगर हम लोग फॉर लूप में लिखते तो क्या लिखते हैं, फॉर आई इक्वल टू 1 टू, आई इक्वल टू 1 टू 10, 1 टू 10, 1 टू 5, स्टेप वैल्यू लिखते, स्टेप वैल्यू 1। तो ये स्टेप वैल्यू क्या करता था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डिटरमाइन स्टेप वैल्यू के पास हम लिखते थे। लेकिन यहां पर कहां होगा, हियर विद इन द बॉडी, इसको बोलते हैं क्या, डू लूप, डू व्हाइल का ये बॉडी हो गया, बॉडी ऑफ द डू व्हाइल लूप। डू और लूप के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द डू व्हाइल लूप, बॉडी ऑफ द डू व्हाइल लूप। नाउ सी हियर द नेक्स्ट वन। सो इन दिस केस, इस केस में हम लोग डू व्हाइल के केस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कहां करेंगे। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट डू व्हाइल के केस में डू व्हाइल लूप के बॉडी में ही करेंगे। बॉडी मींस डू और लूप के बीच में ही कहीं ना कहीं लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सी हियर एवरीवन, अब देखिए यहां पे मैंने लिखा था क्या, प्रिंट वेलकम टू CMIS। अब मैं यहां पे लिखता हूं आई इक्वल टू, आई इक्वल, अब देखिए यहां पे आपके पास क्या है, स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे करते थे। अब यहां पे आपको लिखना है आई इक्वल टू आई प्लस 1। अगर आप इंक्रीमेंट 1 करना चाहते हैं, ये इंक्रीमेंट करना चाहते हैं बाई 1, तो आपको लिखना होगा आई इक्वल टू आई प्लस 1। इंक्रीमेंट बाई 2 करना चाहते हैं तो 2। इसमें क्या करते थे, नॉर्मली 1 से करना है तो स्टेप 1, 2 से करना है तो स्टेप 2, ऐसे ही करते थे। यस और नो, फॉर लूप के केस में ऐसे ही करते थे ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल आई है, इंक्रीमेंट बाई 1 करना है तो आई इक्वल टू आई प्लस 1, 2 करना है तो आई इक्वल टू आई प्लस 2, 3 करना है आई इक्वल टू आई प्लस 3। अगर डिक्रीमेंट करना रहता है तो इस केस में स्टेप वैल्यू -1 करते थे, -2 करते थे, -3 करते थे। यस और नो,
बट हियर डिक्रीमेंट करना है i इक्वल टू आई माइनस वन, आई इक्वल टू आई माइनस टू, आई इक्वल टू आई माइनस थ्री, आई इक्वल टू आई माइनस फोर, ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहां पर जो था इन केस ऑफ फॉर लूप आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है पहले स्टेप लिखना है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वैल्यू स्टेप के फ्रंट में लिखना रहता था। बट इन केस ऑफ डू व्हाइल लूप आप जो है डू और लूप के बीच में कहीं भी लिख सकते हैं। सो आइदर यू कैन राइट लाइक दिस। ये क्या कर रहा है? ये प्रिंट स्टेटमेंट। ये क्या हुआ? दिस वन इज वन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, ठीक है ना। आप इस स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर भी लिख सकते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और आप चाहें तो इसके नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो डू और लूप है इसी के अंदर में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। यस एवरीवन टेल मी, समझ में आया यहाँ पर? Yes, sir. Initialization, here is the initialization of the variable. Condition, here is the condition of the variable. अब condition जो है आपको खुद लिखना है। So see here, यहाँ पर for loop के केस में क्या था? कंडीशन ऑटोमेटिकली लिखा हुआ रहता था, आपको कुछ नहीं कंडीशन, ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू दे दिए, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वो कंडीशन खुद जनरेट करता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर आप कंडीशन खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन आप खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं आई लेस ग्रेटर देन 5। तो ये मल्टीपल अगर वे दिया हुआ है तो मल्टीपल वे क्यों दिया हुआ? क्योंकि फर्स्ट वाले में कुछ प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सेकंड वाले में सॉल्व किया गया। क्या प्रॉब्लम फर्स्ट में था? कि कंडीशन स्पेसिफाई करना मुश्किल था। सब means every types of condition you cannot specify in this for loop, but here in case of do while loop we can write any kind of condition, हम लोग कुछ भी कंडीशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे आप कंडीशन अपने मन के से नहीं लिख सकते हैं, अपने जो भी आपका रिक्वायरमेंट उस हिसाब से कंडीशन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये इनिशियल और फाइनल वैल्यू देना है और वो ऑटोमेटिक कंडीशन जनरेट करेगा। बट हियर यू कैन राइट योर ओन कंडीशन, आप अपना कंडीशन लिख सकते हैं, राइट। सो ये यहाँ पर बेनिफिट है डू व्हाइल लूप में, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है ना। डू व्हाइल लूप पे एक एग्जांपल करेंगे और सिंग उस एग्जांपल को हम लोग रन करेंगे, एग्जीक्यूट भी करेंगे। सो सी हियर, अब हम लोग प्रिंट करेंगे 1 to 10 यूजिंग डू व्हाइल लूप। सो सिंटैक्स इज आई इक्वल टू what 1 do while I less than equal to 10 टाइम्स हमको प्रिंट करना है। इनिशियल वैल्यू 1 है, ठीक है। कंडीशन हो गया कि जब तक 10 आई का वैल्यू जब तक लेस देन 10 रहेगा तभी तक प्रिंट करना है। सो डू व्हाइल, और यहां पर क्या है? यहां पर हमको लिखना पड़ेगा लूप, ठीक है। और डू और लूप के बीच में हमको क्या करना होगा? जो भी करना है वो करेंगे। क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे, आई को प्रिंट करेंगे, ठीक है। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना है तो आप यहाँ पर भी इस स्टेटमेंट के ऊपर भी आई के वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हैं या इस स्टेटमेंट के बाद भी कर सकते हैं। तो मैं प्रिंट के बाद कर रहा हूँ। सी हियर एवरीवन, प्रिंट आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। सो ये मैं स्टेटमेंट लिखा। अब इसको सेम को मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखा रहा हूं। यहां पर हम लिखेंगे CLS, क्लियर द स्क्रीन। नाउ सेम आई विल एग्जीक्यूट इन द, आई विल रन इन द विजुअल बेसिक। नाउ टेल मी एवरीवन, स्क्रीन इज विजिबल और नॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now the screen is visible. Now see everyone. So same program I am going to write using do while loop. Do while loop. So one variable I am first clear the screen, CLS. Then variable I am taking one variable I equal to 1, right? Then do while. Do while is what? Fixed syntax. Then condition. My condition is I लेस देन इक्वल टू 10। जब तक i लेस देन 10 होगा मैं प्रिंट करना चाहता हूं। क्या प्रिंट करना चाहता हूं? CMIS और द वैल्यू ऑफ i।
then I am writing print welcome to CMIS. मैं 10 times welcome to CMIS print करना चाहता हूं, and here I want to add here write loop, do and loop, but here the condition is missing. Condition यहाँ पे see here initialization, here condition, and here between do and loop you have to write what? Increment or decrement. So I am writing here I equal to I minus 1, I plus 1, sorry, I plus 1. Right? Now I am click on run, start. See here, welcome to CMIS 10 times. So if you change here the message, what? You can write like this also, I. Then see here everyone, welcome to CMIS. 10 times it is coming or not? Yes, everyone. Yes, sir. Now see here the same program. I want to print the numbers, all the odd numbers between 1 to 10. 1 से 10 के बीच में जितने odd numbers है उसको print करना है. So see here everyone, try to understand this one. ये प्रोग्राम को समझने का कोशिश कीजिए. अब ये तो मैं सिंटैक्स बता दिया, लेकिन अब ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है वो समझिए. Now see here everyone. This just if you, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो दिस प्रोग्राम, ये जो है लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 1, दिस वन इज स्टेटमेंट नंबर 1 बोला या लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, दिस वन इज व्हाट? लाइन नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 3, दिस वन इज व्हाट? लाइन नंबर 4 और स्टेटमेंट नंबर 4, नेक्स्ट वन इज व्हाट? लाइन नंबर 5 and this one is what? Line number 6, line number 6. Now see here everyone, so statement number 1, so better to write S1, not line number, tell it is statement, so use the correct terminology, statement. Now see here everyone, so these are the statements. Now first statement is what? CLS, clear the screen, clear the screen. So see here, so this is what our program, ये हमारा प्रोग्राम है. अब ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा अब हम लोग वो समझेंगे. सी हियर स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन, क्लियर द स्क्रीन. अब ये हमारा यहाँ पर आउटपुट विंडो है, ये आउटपुट विंडो है. सी हियर, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लियर द स्क्रीन. तो क्लियर द स्क्रीन मींस ये जो स्क्रीन है अगर प्रीवियस आउटपुट कुछ है तो वो क्लियर हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट स्टेट लाइन नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 2 इज व्हाट? आई इक्वल टू 1. आई इक्वल टू 1 मींस वन वेरिएबल इज देयर व्हिच वैल्यू इज 1. नाउ स्टेटमेंट नंबर 3, लाइन नंबर 3, सो डू व्हाइल. एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड. Here statement number 3 means what? Condition checking. I less than 10. So I value is what? 1. Whether 1 is less than 10 or not. Whether 1 is less than equal to 10. True or false? Everyone tell me. Yes. So 1 is less than. So it is true or false? True. So it is true. False. Not True. false. False means your brain is not working properly. Contact the doctor. So true. So yes, 1 is less than 10. So it is true. अब true है, यहीं पे समझने का है. Try to understand it. Statement number 3. Statement number 3 क्या है? Do while loop है. तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ही do while loop आएगा तो देखेंगे कि एंड कहाँ है. एंड यहाँ पर है. लूप कहाँ पर लिखा हो? यहाँ पे. मीन्स हम स्टेटमेंट नंबर 3 से स्टेटमेंट नंबर 6 के अंदर हम लोग रोटेट करेंगे. यहाँ से लूप स्टार्ट हुआ मीन्स सेम वर्क मल्टीपल टाइम मुझे करना है. तो ये देखिए अब यहाँ पे चेक होगा कंडीशन ये ट्रू है कि नहीं. ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर 3 और स्टेटमेंट नंबर 6 के बीच में जो कुछ भी लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा.
ठीक है ना। अगर ये ट्रू होगा तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा हम लोग स्टेटमेंट नंबर 6 से बाहर आ जाएंगे। स्टेटमेंट नंबर 6 से बाहर आने का मतलब अगर स्टेटमेंट नंबर 6 के आगे भी स्टेटमेंट नंबर 7 देगा तो उस लाइन पे हम लोग चले जाएंगे, ठीक है ना। तो करंटली हम लोग लाइन नंबर 3 पे है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। अब ट्रू है तो स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, प्रिंट आई। तो आई में वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम लोग 1 प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 प्रिंट होगा, आउटपुट विंडो में 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 5 इज व्हाट, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई का वैल्यू अब हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई का प्रीवियस वैल्यू 1 था, 1 प्लस 1, नाउ द आई वैल्यू इज 2। आई का वैल्यू अब 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 6 पे आएंगे, लूप मतलब ये हमें फिर वापस यहाँ पे लाइन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 पे भेज देगा। ये लूप अभी कंडीशन सब ट्रू है, अगेन ये लूप क्या करेगा, बैक मुझे स्टेटमेंट नंबर 3 पे सेंड कर देगा, ठीक है ना। सो फिर while i is less than 10 means i value is what, 2 is less than 10 or not, again here check। so 2 is less than 10, true or false? It is true. It is false, yes or no? No sir, true. It is true. It is true. Now again it is true। अब ट्रू है, लाइन नंबर हम लोग 3 पे है और ट्रू है। जैसे ही ट्रू होगा इसका मतलब होगा कि लाइन स्टेटमेंट नंबर 3 से 6 के बीच में जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 4 क्या है, प्रिंट आई। आई का वैल्यू 2 है, यहाँ पर हमारा विंडो आउटपुट विंडो में 2 प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट विंडो में 2 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा, आई इक्वल टू आई प्लस 1। आई का वैल्यू 3 हो जाएगा, प्रीवियस वैल्यू 2 है, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, आई का वैल्यू 3 हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 6 लूप है, ये क्या करेगा, बैक सेंड कर देगा स्टेटमेंट नंबर 3 पे। अगेन while i is less than 10, i means 3 less than 10, समझ में आ रहा। so in this way it will be continued। so here also true, here also true, then here also true means again statement number 4 and 5 will be executed, so print 3। समझ रहे हैं। सो ऐसे ही क्या होगा, आई का वैल्यू 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। हियर 1 कंडीशन आएगा आपके पास, हियर आई वैल्यू 10 हो जाएगा, 1 आई वैल्यू 10 हो जाएगा। सो इट इज ऑल्सो ट्रू, यस और नो, आई वैल्यू इज 10, सो ट्रू। सो ट्रू होगा तो यहां तक हमारा 10 तक आई वैल्यू जब 10 होगा तो यहाँ पे प्रिंट आई मीन्स 10 प्रिंट होगा। और i इक्वल टू आई प्लस 1, आई का वैल्यू अगले बार 11 हो जाएगा, आई का वैल्यू नेक्स्ट टाइम 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, ठीक है ना। आई का वैल्यू 11 हो जाएगा और लूप पे आएंगे, ठीक है, लूप पे आएंगे, स्टेटमेंट नंबर 6 पे लूप। सो ये सेंड कर देगा बैक यहाँ पर, और यहाँ पे चेक होगा कंडीशन 11 इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10। सो ट्रू और फॉल्स, यस एवरीवन, False. so it is false, it is false। why? because 11 is less than 10, it is also false। 11 equal to 10, this is also false, means both are false, right। so false means यहाँ पर ये कंडीशन false हो गया, लाइन नंबर 3 हमारा पे अभी थे वो false होगा। जैसे ही false होगा हम लोग स्टेटमेंट नंबर 6 से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने का मतलब अगर यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 7 भी कुछ रहता, स्टेटमेंट नंबर 7 सपोज हम लिखते हैं कि प्रिंट एग्जिट फ्रॉम लूप, तो ये हमारा लाइन अब सीधे हम लोग स्टेटमेंट नंबर 6 से 7 पे आ जाएंगे। जैसे ही यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हुआ, S3 से डायरेक्ट हम लोग S7 पे आ जाएंगे, जंप कर जाएंगे, राइट। इन दिस वे दिस प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटेड। नाउ सी हियर एवरीवन, वन मोर टाइम, स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, yes or no? Yes sir. Now if I will run this program, so see here 10 times this statement welcome to CMS, CMS will be printed। now see here, अब मैं जंप कर जाए, कंडीशन जब फॉल्स होगा, देखिए यहाँ पे आई का जब वैल्यू 11 होगा तो 11 इज लेस देन 10, इट इज व्हाट, फॉल्स। जैसे ही फॉल्स होगा तो हम लोग इस लूप जहां ये लिखा है ना इसके बाहर आ जाएंगे, और इसके बाहर जो स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा। नाउ सी हियर, सो प्रिंट हम लिखते हैं प्रिंट स्टूडेंट्स ऑफ
here write welcome to the welcome to students of class 7. Right? Now see here. Yes or no? Execute हो रहा है ना? Yes, everyone. So this program everyone is able to understand? Yes.